ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ مسلسل چیختے ہوئے پورے آفس کو سر پر اٹھائے ہوئے تھی۔ کہاں کیا؟ ریحان ملک کی فائلز چوری ہوئی ہیں اور نائلہ نے خود دیکھا ہے تم نے چوری کی ہے۔ ماہر نے مسکرا کر کہا اور اس کا بازو تھامنا چاہا۔ مجھے ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گی غلیظ انسان، اس نے ماہر کو گھورتے ہوئے کہا جو ریحان ملک کا اسسٹنٹ بھی تھا۔ ہاتھ بعد میں توڑنا، پہلے پولیس کیس نپٹا لو، اس نے مزے سے آنکھ مارتے ہوئے ماہرہ کی جان ہوا میں معلق کر دی۔ میں نہیں جاؤں گی، میں نے کوئی چوری نہیں کی، وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ تم اسی لیے پرائیویٹ ٹائپسٹ بنی تھی، وہاں تک رسائی حاصل کر کے ریحان ملک کو پسپا کر دو۔ اب مجھے سمجھ آئی وہ ساری باتیں، 2 سال سے جو تم مجھے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی تھی، اس کی یہ وجہ تھی۔ ماہر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ تمہارا ارادہ ریحان ملک کی جگہ لینے کا تھا، اور امیر ہو کر کہاں غائب ہوتی؟ ماہر کا منہ تھا کہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ماہرہ کو غصہ آنے لگا۔ میری آج ڈیٹ فکس ہوئی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ ماہر اسے گھسیٹ کر ریحان کے آفس لایا۔ اس نے بھی یہ بات سنی تھی۔ یہ بہت اہم فائلز ہیں، کسے چوری کر کے دے رہی تھی ماہرہ؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خفگی تھی۔ میں نے چوری نہیں کی، میں کیوں کروں گی؟ میں اس آفس کے علاوہ کسی آفس کو جانتی تک نہیں ہوں، وہ غصے سے چیخ رہی تھی۔ ریحان نے انگلی سے اشارہ کیا کہ سب باہر چلے جائیں۔ اس کے اشارے پر سب ایک ایک کر کے باہر نکل گئے۔ ماہر وہاں کھڑا اس کی حالت پر محظوظ ہو رہا تھا۔ ریحان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ تم بھی باہر جاؤ، تمہیں الگ سے کہنا پڑے گا۔ ریحان ملک کی بات سن کر وہ منہ بنانے لگا۔ مجھے بھی یہاں رہنے دینا، اس لڑکی نے بہت ٹف ٹائم دیا ہے، مجھے بھی دیکھنا ہے چوری کے بعد لوگ کیسے لگتے ہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ اس کی مسکراہٹ ماہرہ کو کھل رہی تھی۔ اس کا دل چاہا ریحان ملک کے برابر میں کھڑے ماہر کا منہ نوچ لے۔ نائلہ نے میرا بیگ لیا تھا سر، یہ ضرور ماہر کا کام ہے، اس نے انگلی سے اشارہ کرتے اس پر الزام لگایا۔ ریحان ملک نے اسے سینے پر بازو باندھ کر دیکھا۔ آپ خود کو بچانے کے لیے دوسروں پر الزام لگائیں گی؟ اس نے باقاعدہ ماہرہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ لب بھینچ کر رہ گئی کہ اس کے پاس اب کوئی ثبوت ہی کب تھا کہ خود کو بے گناہ ثابت کر سکتی۔ سر پلیز مجھے جانے دیں، آج میری تاریخ فکس ہوئی ہے، مہمان آنے والے ہوں گے، اس نے نرمی سے التجائیہ لہجہ اپناتے اسے پگلانا چاہا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلتے دیکھ کر ماہرہ کو لگا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پولیس کیس ہے، یہ فائلز بہت اہم ہے ماہرہ، جو تمہارے بیگ سے نکلی ہیں۔ میں ایک شرط پر پولیس کو اس کیس سے دور کر سکتا ہوں۔ اس نے ماہر اور باقی سب کو کمرے سے نکال کر ماہرہ سے دو بدو سوال جواب طلب کرنے لگا۔ کیسی شرط؟ اور میں کوئی شرط کیوں مانوں جب میں نے کوئی چوری کی ہی نہیں؟ وہ اتنا غصہ تھی کہ ریحان ملک کے قابو میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ ثبوت ہمارے پاس ہے، آپ نے چوری کی ہے۔ پیچھے سے پولیس کی آواز سن کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے مڑ کر 4 ہٹے کٹے پولیس اہلکار کو دیکھا تو اس کا سانس خشک ہو گیا۔ وہ اسے گرفتار کرنے آئے تھے۔ ماہرہ کے پاس اس پیپرز کو سائن کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے ٹیبل پر رکھے پیپر دیکھے اور پھر نظر اٹھا کر ریحان ملک کو دیکھا۔ وہ اسے پوری توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیپرز اٹھا کر پڑھے۔ جیسے جیسے وہ پیپر پڑھتی جا رہی تھی، اس کی آنکھیں پھٹتی جا رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ کانٹریکٹ میرج کرے گا۔ یہ سب کیا ہے سر؟ اس نے آنکھوں کی نمی کو پیچھے دھکیل کر لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ کانٹریکٹ میرج؟ وہ ہلکی آواز میں بولا۔ پولیس اہلکار آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ریحان نے انہیں باہر انتظار کرنے کا کہا تھا۔ لیکن میری شادی طے ہو چکی ہے، اگلے مہینے شادی ہے، آج ڈیٹ فکس ہوئی ہے، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ روحاں سی ہو گئی تھی۔ اس کے خاندان کی عزت اس کے ہاتھ میں تھی۔ اگر وہ پولیس اسٹیشن جاتی تو اس کی اور اس کے خاندان کی عزت داؤ پر لگ جاتی، اور یہ شادی کرتی تب بھی دونوں چیزیں داؤ پر لگ جاتی۔ رہائی کے بدلے شادی،
اس نے 2 टोक लहजे में कहा तो वो उसे देख कर रह गई। वो उसे हमेशा डिसेंट सा मर्द लगता था, लेकिन वो गलत थी। वो बदला लेता था और सच्चाई भी जानने की कोशिश नहीं करता था। मायरा का दिल किया उसके सर पर पेपर वेट उठाकर दे मारे कि उसका चेहरा इसे देखने को ना मिले। मैं ये शादी नहीं करूं तो? उसने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। दिल बंद होने के करीब था, धड़कन बढ़ गई थी। मायरा किसी भी वक्त बेहोश हो सकती थी। 1 साल जेल। उसके ये 3 अल्फाज इसकी रुसवाई के लिए काफ़ी थे। इसके माँ बाप किस तरह साबित करते कि वो चोर नहीं है, या वो बड़ा वकील कैसे करती? रेहान मलिक के आगे वो कुछ भी नहीं थी। वो रेहान मलिक को देखती, माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों को देख रही थी। उसे इस वक्त कौन सा रास्ता चुनना था जो उसे सजा से बचाकर माँ बाप की इज्जत बचाने का जरिया बन जाता। उसने गहरी सांस ली और पेपर साइन कर दिए। आपकी ख्वाहिश पूरी हुई, उसने अपने गाल पर लुढ़कते आंसू साफ करते हुए कहा, और वो पेपर साइन करते ही बेहोश हो गई थी। उसे चोरी और शादी का सदमा लग गया था। पुलिस एहलकार अंदर आए, उसने लैपटॉप की स्क्रीन ऑन कर दी और वो सॉरी कहते चले गए। माहिर अंदर आया और माहिरा को सोफे पर लेटा हुआ पाया। तुमसे पुलिस को बुलाने को किसने कहा था? रेहान मलिक उसकी जानिब आते गुस्से से पूछ रहा था। इसने तुम्हारी आम फाइल जब्त की थी। मैंने सोचा कहीं किसी दुश्मन की चाल ना हो, इसीलिए पुलिस बुला ली। और ये यहाँ बेहोश क्यों पड़ी है? माहिर ने उसकी जानिब देखते कहा तो वो उसका हाथ रोककर उसे घूरने लगा। ये अब मेरी बीवी है, इसे हाथ लगाने की गलती भी मत करना, वरना पछताओगे। मैं और माहिरा पहले ही तुम्हारी इस हरकत की वजह से काफी परेशान हैं। उसके 2 टोक लहजे में रोकने पर माहिर सीधा खड़ा हो गया। मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूं, तो मुझे इसके बाद भी जॉब से नहीं निकाल सकते, समझे? उसने रोब झाड़ते हुए कहा और रेहान मलिक को गुस्सा आ गया। उसने मुक्का इसकी नाक पर मारा और इसकी नाक से खून बहने लगा। अपना ये एटीट्यूड अपने पास रखो, रेहान मलिक ने उसे गेट आउट इशारा करते कहा और वो लब भेंचे माहिरा के वजूद पर निकाह डालकर बाहर निकल गया। उसे अफसोस हो रहा था जिस लड़की के पीछे वो ख्वार हुआ था वो उसके दोस्त और बॉस की बीवी बन गई थी। वो गुस्से से बाहर जा रहा था, सब सामने से नाइला आई। माहिर, उसने आवाज लगाकर इसे रोकना चाहा। सर, कॉल मी सर, उसने तैश में मुड़कर कहा कि अब सब उन दोनों को देखने लगे। नायरा सर हिलाते हुए पीछे हुई और आंसू बहाने लगी। उसने माहिर पर यकीन करके अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और वो इसे कैसी सजा दे रहा था। उसने पीछे कदम उठाए और अपने केबिन में आकर आंसू बहाने लगी। आज सब माहिरा की चोरी की वजह से मीटिंग में मसरूफ थे। सबके पास गॉसिप के लिए माहिरा का नाम था। उसने एक नज़र पूरे ऑफिस पर डाली। माहिरा ठीक कहती थी, वो उसका यकीन नहीं करती थी। उसने लब भेंचकर टिश्यू बॉक्स से ढेर सारे टिश्यू निकाले और गाल रगड़ डाले। उन सब ने पुलिस के जाते ही रेहान मलिक को माहिरा को गोद में उठाए और निकलते देखा। वो हैरत से मुंह पर हाथ रखे देख रहे थे कि उनके सर चोर को गोद में उठाए न जाने कहाँ ले जा रहे थे। सबके सब खिड़की से बाहर झांकने लगे जहां रेहान मलिक माहिरा को गाड़ी में बिठा रहा था और सीट बेल्ट पहनाकर दूसरी तरफ घूम कर आया और ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसका रुख अपने घर की जानिब था। वो माहिरा को वहां लाया और अपने बेड पर लेटाकर उसकी हील्स उतारने लगा। उसने गहरी सांस खींचकर माहिरा के घर कॉल में लाई थी। आंटी, अंकल, मैं आप लोगों के लिए गाड़ी भेज रहा हूं, इस एड्रेस पर पहुंचे। उसने सीधा अपने मतलब की बात की और ड्राइवर को माहिरा के एड्रेस पर भेजा। वो परेशानी से उस ड्राइवर के साथ वहां 1 घंटे में पहुंच गए। उसने लाउंज में उन्हें बिठाकर नौकर को रिफ्रेशमेंट का इंतजाम करने का कहा तो वो सर हिलाकर चला गया। उन दोनों ने रेहान मलिक की जानिब देखा। मैं आपकी बेटी से शादी कर चुका हूं, अभी प्रॉपर तरीके से निकाह करना चाहता हूं। माहिरा ने ऑफिस में गलती की थी और मुझे शादी करनी थी, इसलिए माहिरा से उस गलती को दरगुजर करने की वजह से शादी कर ली। आप लोग बताएं, आप इस निकाह में शामिल हैं? उसने अपना राज अभी बताने से गुरेज किया, वरना माहिरा और उसके माँ बाप इसको वहां से ले जाते और वो कुछ ना कर पाता। कैसी गलती? उसकी माँ ने हैरत से पूछा। उन्हें माहिरा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। चोरी, बहुत बड़ी चोरी।
उसने उन्हें अंडर प्रेशर लेते हुए कहा। माहिरा की आज शादी की तारीख रखी जानी है और अगले माह शादी है। उसके बाप ने बेबसी से कहा कि वो कुछ रियायत ही कर ले। अंकल, माहिरा यहाँ खुश रहेगी और गलती की सजा होती है, फिर भी मैं माफ कर रहा हूँ। उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए अफसोस से कहा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। उसकी माँ ने बात को ना बनते देखकर उसे इजाज़त दे दी और कुछ वक्त बाद माहिरा को बाहर लाया गया। वो अपने माँ बाप को देखकर हैरान रह गई। बाबा, मामा मुझे यहाँ से ले जाएं। उसने उन्हें देखते ही उम्मीद से पुकारा। तुमने गलती की है, उसकी सज़ा अब भुगतो। उसकी माँ ने गुस्से से घूरा। ना, शादी सज़ा नहीं होती और यह आदमी झूठा है, मैंने कोई चोरी नहीं की। उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। उसने एक वीडियो उन सब की जानिब की। माहिरा मुंह पर हाथ रखे देखने लगी। ये सच नहीं है। उसने इनकार किया, उस इल्ज़ाम को रद्द किया। बेटा, निकाह कर लो। उसके बाप ने रोहा से होते हुए कहा तो उसने निकाह कर लिया। शुक्रिया आंटी अंकल, आप लोग यहाँ कभी भी आ सकते हैं। यहाँ के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हुए हैं। उसने मुस्कुराकर कहा तो वो माहिरा को गले लगाकर चले गए। माहिरा ने दुपट्टा सोफे पर फेंका और उसकी जानिब आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे शादी करने की? उसने गुस्से से इसका कॉलर पकड़ते कहा। उसकी आंखों से गुस्सा झलक रहा था। हिम्मत तो बहुत कुछ करने की है, बताऊं और क्या क्या कर सकता हूं? वो उसके हाथों पर हाथ रखे बोला कि माहिरा ने हाथ हटा लिए। तुम मेरे करीब जिंदगी भर नहीं आओगे। उसने उंगली उठाते वार्न किया। रेहान मलिक ने उसी उंगली को लबों से छू लिया और वो गुस्से से वहां से वॉकआउट कर गई। रेहान मुस्कुराने लगा। जैसे भी हुआ लेकिन हो ही गया। वो एक बेड पर सोए थे। रेहान ने उसे वार्न कर दिया था कि अगर वो इस बेड से उठ कर गई तो वो उसकी पाबंदी को दरगुजर कर देगा। वो डर गई और बेड पर बॉर्डर बनाकर सो गई। मुझे ऑफिस जाना है, उसने नींद से भरी आंखों को बमुश्किल खोलते पूछा। नहीं, आराम करो, उसने टाई की नॉट टाइट करते हुए कहा। मेरी सैलरी दे देना, जितने दिन काम किया है। उसने इसे ऑर्डर जारी किया तो रेहान ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिला दिया। तुम्हारी जिससे शादी हो रही थी, तुम्हें उससे मोहब्बत थी? वो ना जाने क्यों यही बात सोच सोच कर पागल हो रहा था। कौन? वाजिद? नहीं, उसे तो बस तस्वीर में देखा था। वो नींद में थी, इसीलिए नॉर्मल अंदाज से जवाब दे रही थी और वो बेड पर बैठा उसे देख रहा था। आते हुए कपड़े लेते आना मेरे घर से। वो दूसरा ऑर्डर देती पलटकर सो गई और रेहान ने गहरी सांस हवा के सुपुर्द करते उस पर कंफर्टर दुरुस्त किया और उसका माथा देखने लगा कि कहीं उसे बुखार ना हो। टेम्परेचर नॉर्मल था। वो सुकून भरी नज़रों से उसे देखकर निकल गया। उसने ऑफिस में भी बता दिया था कि उसने माहिरा से शादी कर ली है और अचानक ही ऑफिस में गॉसिप का तूफान आ गया और नायला की हैरत से आंखें फट गईं। उसे चक्कर आ रहे थे। वो जल्दी से रेस्ट रूम की जानिब दौड़ी। उल्टियां करते करते थक गई थी। उसने ऑफ लिया और डॉक्टर के पास चली आई और वहां जाकर जो बात मालूम हुई तो उसकी दुनिया घूम गई। उसने रोते हुए माहिरा को कॉल मिलाई और उसने पहली बेल पर ही कॉल उठा ली। माहिरा, माहिरा, वो रोती हुई उसका नाम पुकार रही थी। क्या हुआ नायला, सब ठीक है ना? वो परेशानी से पूछने लगी। इस वक्त वो नाश्ता करके बाल बांध रही थी। उसकी कॉल पर कंगा रखकर फोन उठाए बात करने लगी। माहिरा, अस्पताल आओ अभी। उसने अस्पताल का नाम बताया तो वो जल्दी से बाहर निकली। इस अस्पताल जाना है। उसने नाम बताकर ड्राइवर को चलने का कहा तो वो सर हिलाते गाड़ी स्टार्ट किए सीधा अस्पताल ले आया। माहिरा, वो उसे देखते ही रोते हुए गले से लगी। क्या हुआ नायला? वो हैरत से पूछने लगी। माहिरा, तुम ठीक कहती थी, वो मुझे इस्तेमाल कर रहा था। वो रोते हिचकियों से कह रही थी। उसने मेरे साथ ये क्या कर दिया माहिरा? वो मजीद रोने लगी। उसके हाथ से रिपोर्ट लेकर देखी तो माहिरा को शदीद झटका लगा। तुम्हें ये सब कुछ करने से पहले सोचना था नायला। अब वो इस बच्चे की जिम्मेदारी लेगा? उसने गुस्से से पूछा। उसे नायला पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो नहीं लेगा। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। उसे लेनी पड़ेगी वरना मैं रेहान मलिक को नहीं छोड़ूंगी। चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ थामे गाड़ी में बिठा गई।
ऑफिस में रेहान और माहिर दोनों हैं? उसने संजीदगी से पूछा। उसकी शादी उसके माँ बाप की मौजूदगी में हुई थी, इसलिए वो बदनामी के डर से अब आज़ाद हो चुकी थी, लेकिन वो रेहान मलिक को माफ़ नहीं करने की कसम खा चुकी थी। वो दोनों सीधा रेहान के ऑफिस में आई। कब निकली है माहिरा? वो परेशानी से घर ही बात कर रहा था और उसे सामने से आते देखकर फ़ोन रख दिया। माहिर कहाँ है? उसने रेहान से गुस्से से पूछा। क्यों? वो हैरानी से इसकी जानिब आया। नाइला उसके साथ थी। तुम्हें पता होना चाहिए, माहिर जो कुछ कर रहा है उसका क्या नतीजा निकलेगा। उसने रिपोर्ट रेहान के सीने पर मार दी। वो हैरान ही हो रहा था। उसने झुककर रिपोर्ट उठाई और पढ़ने के बाद नाइला को देखा। वो शर्मिंदगी से चेहरा नहीं उठा रही थी। हम दोनों ने इन दोनों को समझाने की कोशिश की थी, तुम्हें याद नहीं है? उसने माहिरा से पूछा। याद है, लेकिन अब माहिर को कहो बच्चे की जिम्मेदारी ले। उसने सीने पर बाजू बांधते दो टोक लहजे में हुक्म दिया। वो नहीं मानेगा। रेहान मलिक जानता था वो कभी एक लड़की के लिए अपनी जिंदगी वक्फ नहीं करेगा। अगर वो नहीं माना तो तुम याद रखना, मैं तुम्हें कभी, उसने इसके कान में झुककर सरगोशी की, करीब नहीं आने दूंगी, और अगर कभी ऐसा किया भी तो तुम्हारी या अपनी जान ले लूंगी। उसके लहजे और बात को सुनकर रेहान हैरान और साकित रह गया। इन दोनों में तुम हम दोनों को क्यों घसीट रही हो? उसने माहिरा से पूछा। क्योंकि मैं इन दोनों की जिंदगी भी बचाना चाहती हूं। डील पक्की? चलती हूं। वो अपने पास से उसकी हां करवा कर चली गई और वो कुर्सी पर ढह गया। 2 साल पहले वो तेजी से फाइल्स का पलंदा लिए लिफ्ट में चढ़ रही थी। लिफ्ट से निकलते हुए शख्स से टकरा गई और उसके हाथ से तमाम फाइल जमीन बोस हो गई। सॉरी। उसने बिना सामने वाले शख्स को देखे नीचे बैठकर फाइल्स उठाने लगी। कुछ फाइल्स लिफ्ट के अंदर और कुछ बाहर गिरी हुई थी। उसने लिफ्ट के दरवाजे को बंद करने से रोक रखा था और माहिरा हाशमी दरवाजे के बीच बैठी थी। मिस, जल्दी से उठ जाएं, दरवाज़ा बंद हो जाएगा, रेहान मलिक के असिस्टेंट ने उसे कहा। वो जी कहकर जल्दी से फाइल्स उठाकर खड़ी हो गई। सामने देखा तो रेहान मलिक एक हाथ जेब में डाले और दूसरा हाथ लिफ्ट के दरवाजे पर रखे खड़ा था। इसे ऑफिस ज्वाइन किए 2 हफ्ते हो चुके थे। सॉरी सर, माहिरा हाशमी ने शर्मिंदा होते कहा तो वो उसे एक नज़र देकर चला गया। सॉरी सर, उसने असिस्टेंट को भी कहा तो वो मुस्कुरा कर चला गया। वो बॉस के मुकाबले में थोड़ा हंसमुख किस्म का आदमी था। माहिरा ने लिफ्ट के अंदर कदम बढ़ा दिए और मतलूबा फ्लोर का बटन पुश किया। माहिरा तेजी से नीचे वाले डिपार्टमेंट में फाइल्स देकर अपने केबिन में आ गई। बॉस को देखा, वो गश्त खाते किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। माहिरा ने जल्दी से अपनी नज़रें स्क्रीन पर कर दी और टाइपिंग करने लगी। रेहान मलिक ने एक नज़र सब वर्कर्स पर डाली। उसकी नज़रें माहिरा हाशमी पर जा टिकी और फिर वो सर झटक कर अपने ऑफिस के अंदर चला गया। हेलो लेडीज़। असिस्टेंट माहिर का अभी कोई काम नहीं था। वो लड़कियों के गिर्द रहना पसंद करता था। माहिरा के अलावा सबने सर उठाकर मुस्कुराकर उसे देखा। लड़कियां उसे अच्छी खासी लिफ्ट देती थीं ताकि वो उनके काम आ सके। माहिरा के हाथों की तेजी देखकर माहिर हैरान हुआ। वो अपने काम में बेहद संजीदा थी। अपने काम से काम रखना और वक्त पर हर काम करना। अक्सर उसे माहिर इम्प्रेस करने की कोशिश करता था जिसे वो आसानी से इग्नोर कर जाती थी। यार, ये लड़की कितनी मुश्किल है, हाथ ही नहीं आती। इस ऑफिस में मौजूद हर लड़की ने मुझे नंबर दे दिया सिवाय माहिरा हाशमी के। न जाने खुद को क्या समझती है। माहिर रेहान के ऑफिस में खड़ा बिना ये जाने कि रेहान भी वही अपनी बातों में लगा हुआ था बता रहा था। वहां ऑफिस के कुछ वर्कर्स उसके क्लोज फ्रेंड थे। तुम गलत जगह ट्राई कर रहे हो। वो हमसे ज़्यादा बात नहीं करती और अगर कोई पर्सनल होने की कोशिश करे ऐसी घूरी देती है कि अल्लाह की अमान। उसने बाकायदा कानों को हाथ लगाते कहा था कि माहिर भी हंस पड़ा। वाकई मुश्किल तरीन लड़की है। माहिर ने इस बात में सर हिलाते कॉफ़ी का कप लबों से लगा लिया। इतने में रेहान भी वहां चला आया। किस बारे में बात हो रही है? उसने सीधा आते ही माहिर से पूछा जो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। वो लड़की मुझे रेहान के टाइप की लगती है। ये साहब किसी लड़की को लिफ्ट नहीं करवाते और वो किसी लड़के को। दोनों की
जोड़ी खूब जमेगी। माहिर ने रेहान का मजाक बनाते कहा। उसने माहिर को मुक्का दिखाया। सुधर जाओ, लड़कियों की इज्जत किया करो। उसने थोड़ा सख्ती से कहा। करता तो हूं, जब भी बस नंबर लेता हूं, कुछ वक्त बात करता हूं, जब मामला संजीदा होने लगता है तो छोड़ देता हूं। वो हंस रहा था। नहीं किया करो, लड़कियां एक बार दिल लगा लें तो दिल से नहीं निकाल पाती। हम लड़के आसानी से मूव ऑन कर जाते हैं, रेहान ने संजीदगी से कहा। वो इस मामले में माहिर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता था। अब ऐसा भी नहीं है, माहिर ने नाक से मक्खी उड़ाई। ऐसा है, इसका अंदाजा तुम्हें बाद में होगा, जब सर से पानी गुजर चुका होगा। उसने निहायत इत्मीनान से उसे वार्न किया था, लेकिन इस वक्त वो इस मजे में इतना उलझा हुआ था कि उसे रेहान की बात मजाक लगी थी। वो उठ खड़ा हुआ। माहिर ने उसे जाते देखकर कंधे उचका दिए। माहिर, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो गुस्से से पेपर वेट सोफे पर फेंकते बोला। नायला माहिरा की सबसे करीबी दोस्त थी। उसकी बस नायला से ज्यादा बनती थी। वो अक्सर लंच भी उसके साथ ही करती। उस दिन नायला लंच कर रही थी और माहिरा उससे बातें कर रही थी कि माहिर उसकी जानिब चला आया। रेहान मीटिंग में था और उसने माहिर को आने से मना किया था। हेलो लेडीज, उसने हमेशा की तरह मुस्कुराते और पुरजोश लहजे में कहा। माहिरा ने अलबत्ता नजरें उठाकर भी नहीं देखा, जबकि नायला ने मुस्कुराकर उसे हेलो कहा था। कैसी हो? उसने नायला को देखते हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप सुनाएं, आज मीटिंग में बॉस के साथ नहीं गए? नायला ने अपने बराबर बैठे माहिर को देखते पूछा। रेहान ने मुझे वापस भेज दिया, वो मजे से बोला। उसे वाकई वापस लौटकर अच्छा लग रहा था। वैसे हमारा नाम कितना मिलता जुलता है, माहिर और माहिरा। माहिर ने मुस्कुराकर कहा। बहन भाइयों जैसी फीलिंग आती है। माहिरा ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो वो खांसने लगा और नायला हंस पड़ी। माहिर सर, यहां आपकी दाल नहीं गलने वाली, यहां का पानी खारा है। नायला ने मजे से उसके उतरते चेहरे को देखकर कहा तो वो मुंह बिगाड़कर माहिरा को देखने लगा, जो उसे ही भाई बना चुकी थी। ये गलत है, हम भाई बहन नहीं हैं, हमारी शक्ल कहाँ मिलती है? उसने खफा से लहजे में कहा। शायद मेरे माँ बाप ने मेरे भाई से इम्प्रेस होकर मेरा नाम माहिरा रखा है। उसने संजीदगी से इसकी तमाम खुशफहमियों को एक साथ जमीन में गाड़ दिया। नायला हंसने लगी, जबकि माहिर का मुंह लटक गया। उसने जाते हुए नायला का नंबर ले लिया था। लड़कों को ज्यादा लिफ्ट मत दिया करो, ये खुद को शहजादा सलीम समझने लगते हैं। उसने माहिर के जाने के बाद तबसरा किया और बैग उठाकर वापस अपनी चेयर पर आ गई। इसे वहां जॉब करते दूसरा साल था। इस दौरान काफी दफा उसकी मुलाकात रेहान मलिक से भी हुई थी। वो हमेशा उसके काम से इम्प्रेस होता था। रेहान ने उसे तरक्की भी दे दी थी। वो अब टाइपिंग के खास डिपार्टमेंट में काम करती थी, जहां सिर्फ रेहान और माहिर की ही रिसाई थी। अब वहां माहिरा काम करती और उसकी सीक्रेट फाइल्स बनाने का ऑर्डर मिलता रहता। उसने वो काम भी पूरी दिलजमी से किया था। उसकी मुलाकात नायला से होती रहती थी। इस मुलाकात में अक्सर माहिर भी वहां होता और उसे ये हरकत एक आंख पसंद नहीं आती थी नायला की, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। लिहाजा उसने नायला को बहुत दफा समझाकर उसके हाल पर छोड़ दिया। अब अक्सर माहिर नायला को ऑफिस ड्रॉप करता और उसे ऑफिस से छुट्टी पर भी साथ ले जाता। उसने सोचा रेहान मलिक से बात करके माहिर को कंट्रोल करे। वो उस मामले को निपटाने उसकी ऑफिस आई थी। सर, मे आई कम इन? उसने दरवाज़ा बजाते हल्की आवाज़ से कहा और वो यस कहकर लैपटॉप पर झुका हुआ था। माहिरा को देखकर उसने हैरानी से अब्रू उठाए। वो उसकी ऑफिस में बिला ज़रूरत नहीं आती थी। उसके बुलाने पर 2-4 बार आई थी। माहिर उससे बात करने की कोशिश करता तो वो अच्छे तरीके से इग्नोर कर देती थी। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, उसने रेहान मलिक को देखते संजीदगी से कहा और वो हाथ के इशारे से उसे बैठने का कहने लगा। सर, माहिर सर को समझाएं, उसने उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। क्या समझाना है? उसने पूरे ध्यान से इसकी बात सुनने के लिए लैपटॉप बंद कर दिया। उसे लगा वो कहे कि वो मेरे पीछे लगा है, मैं उस पर केस कर दूंगी, इसलिए उसे कंट्रोल कर लें। नायला से वो बहुत ज़्यादा अटैच होने की कोशिश करते हैं
اور میرے خیال سے وہ ہو بھی چکے ہیں. ان سے کہیں اگر پسند ہے تو شادی کر لیں. نائلہ جس گھر سے تعلق رکھتی ہے وہاں یہ سب معیوب سمجھا جاتا ہے. اس نے بات کا آغاز کیا تو ریحان ملک کے ابرو بھینچ گئے. آپ ماہر سے پہلے اپنی دوست کو سمجھائیں کہ وہ جانتی ہے ان کی عزت سے ان کے خاندان کی عزت جڑی ہے. ریحان کو سمجھ نہیں آیا جب وہ ایک ساتھ تھے تو وہ کس بیس پر صرف ماہر کو سمجھاتا. نائلہ ماہر کی محبت میں گرفتار ہے. اس کے خلاف تو کیا اس رشتے کے خلاف ایک لفظ تک نہیں سنتی. ماہرہ ہاشمی نے تھک کر سر پکڑتے ہوئے اسے کہا آپ اور میں جب تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک وہ دونوں خود اجازت سے کر رہے ہیں. اور نائلہ اکثر ماہر کے گھر ہوتی ہے. آپ سمجھ رہی ہیں؟ ریحان نے دبے لفظوں میں وہ کہہ دیا جس سے ماہرہ زلزلے کے جھٹکوں میں آ گئی. نہیں، نائلہ ایسا نہیں کر سکتی. وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بول رہی تھی. محبت اندھی ہوتی ہے. وہ جس طرح کہہ رہا تھا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ سنجیدہ ہے. محبت مائی فٹ. اسے سمجھانا ہوگا. وہ کھڑے ہوتے ہوئے نہ جانے کیوں ریحان ملک پر غصہ کر رہی تھی، حالانکہ غلطی دونوں طرف سے برابر ہو رہی تھی. وہ چلی گئی تو ریحان ملک نے ماتھا مسلا. کہاں ہو ماہر؟ اس نے سختی سے پوچھا کہ وہ بتانے پر مجبور ہو گیا. نائلہ کے ساتھ ریزورٹ آیا ہوں. اس نے سچائی سے بتایا تو اس نے فون کو گھورا. وہاں تم دونوں کو کیا کام ہے؟ تم نے نکاح کیا ہے نائلہ سے؟ ریحان ملک کے سر پر لگ رہی تھی یہ بات. نہیں، اور نہ ہی کرنے کا ارادہ ہے. اس نے کہکا لگاتے ہوئے فون بند کر دیا. ریحان ملک کو بے انتہا غصہ آیا. وہ کسی لڑکی کی زندگی برباد کر رہا تھا اور اسے افسوس تک نہیں تھا. اس نے دوبارہ فون کر کے ماہر کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا. اس نے ریحان ملک کی بات سننے سے ہی انکار کر دیا. نائلہ کو سمجھانا چاہا تو اس نے بھی بات سننے اور ماننے سے صاف انکار کر دیا اور کہا وہ ماہر کے ساتھ ایسے ہی خوش ہے. ریحان ملک کیا کر سکتا تھا جب وہ دونوں ہی غلط راستے پر اپنی مرضی سے چل رہے تھے. اس نے ماہرہ کو کال ملائی. ہیلو، اس نے مصروف سے انداز میں کہا. میری بات ہوئی ہے نائلہ سے. وہ اس رشتے کو چھوڑنے پر اور نکاح کرنے پر راضی نہیں ہے. اس نے پریشانی سے اسے بتایا. میری بھی بات ہوئی ہے. اس نے مجھے بھی کہا ہے کہ اس کے معاملے سے دور رہوں. ہم ان کے معاملے سے اب دور ہی رہتے ہیں. اسے جلدی سے کال کاٹنی تھی لیکن وہ کال ہی نہیں رکھ رہا تھا. آپ کا مایوں کا ڈریس آ گیا. پیچھے سے کسی لڑکی نے اسے آواز لگائی تھی تو وہ اسے گھورنے لگی. آتی ہوں. اس نے کال کٹ کر دی کہ اب آگے اسے کوئی بات نہیں کرنی تھی. ریحان ملک نے حیرت سے کال کو دیکھا. ماہرہ شادی کر رہی ہے؟ اس نے حیران ہو کر فون کو دیکھا. ہیلو، مجھے اپنی ایک ورکر کی ڈیٹیل چاہیے. جلد از جلد اس کی ساری ڈیٹیل مجھے موصول ہو جانی چاہیے. ہری اپ. اس نے تیز لہجے میں کہتے فون بند کر کے سیٹ کی پشت سے ٹیک ٹکا دی. اسے ماہرہ ہر حال میں چاہیے تھی. وہ اسے پسند کرنے لگا تھا. اسے آس پاس بھٹکتے مرد پسند نہیں تھے اور ریحان ملک نے وہ غلطی کی نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ ماہرہ کی نظروں میں گر جائے. اسے دیکھنے کے لیے وہ پرائیویٹ ٹائپسٹ تک رسائی دے چکا تھا. وہ آتے جاتے اسے دیکھ لیتا تھا. ماہرہ کو جب تک معلوم ہوتا کوئی اسے دیکھ رہا ہے وہ بڑے احتیاط سے نظریں کسی اور جانب مرکوز کر لیتی. ماہر سے وہاں کی ہر لڑکی امپریس تھی اور ماہرہ اسے گھاس تک نہ ڈالتی تھی. اور ریحان ملک کے دل کو یہی بات چھو گئی تھی، ورنہ اسے کتنی لڑکیاں خود پاس آنے کی آفر کرتی تھیں اور وہ غصے سے جھڑک کر دور کر دیتا تھا اور ماہر کو بھی کہتا تھا ایسا کرے، لیکن وہ فلرٹی ٹائپ تھا. اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا تھا. اسے میل موصول ہوئی تو ریحان ملک نے گھر پہنچ کر دیکھی. اگلے ماہ اس کی شادی ہے. ریحان ملک کے سر پر بم آ گرے. ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ؟ ریحان ملک شوز سمیت بیڈ پر لیٹ گیا. میں نے کبھی اسے بتایا بھی تو نہیں کہ میں اسے پسند کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں. وہ منہ پر کشن رکھے بس رو دینے کو تھا. میں کیا کروں؟ وہ میرے پروپوز کرنے پر بھی کبھی اس رشتے سے انکار نہیں کرے گی. میں کیا کروں؟ وہ مسلسل سوچ رہا تھا. نہیں، یہ غلط ہے. وہ ہرٹ ہوگی اور کبھی معاف نہیں کرے گی. وہ ماتھا مسلتے ہوئے بولا. وہ ہرٹ ہوگی لیکن میں اسے نہیں چھوڑ سکتا. کچھ ٹائم وہ غصہ ہوگی
और फिर सब ठीक हो जाएगा। उसने खुद को तसल्ली दी और पक्का इरादा कर लिया, सुबह वो माहिरा को अपने नाम करके ही रहेगा। सुबह उसने नाइला को अपने ऑफिस बुलाया। वो ऑफिस आई तो उसने माहिर को ऑफिस से बाहर भेजा। तुम माहिरा के बैग में ये फाइल्स रखोगी और इस बात का माहिरा और किसी को इल्म ना हो, वरना तुम दोनों जो हनीमून मना कर आए हो उसका इल्म सबको हो जाएगा। रेहान मलिक ने सख्ती से कहते फाइल्स उसकी तरफ बढ़ा दी। माहिरा को मालूम हुआ तो? उसने थूक निगलते पूछा। तो मैं हैंडल कर लूंगा, बस इतना करो जितना कह रहा हूं। उसने रेहान मलिक की बात पर अमल किया और फाइल्स माहिरा के बैग में रख दी। माहिरा इतनी मसरूफ थी कि उसे बैग देखने का वक्त ही ना मिला। अचानक ऑफिस में हलचल मचने लगी कि रेहान मलिक की अहम फाइल्स गायब हैं। माहिरा ने कंधे उचकाकर अपने काम पर तवज्जो दी। अचानक उसके सर पर गार्ड्स आए। उसने बैग उनकी जानिब बढ़ा दिया कि वो जिस थाली का खा रही थी उसमें छेद क्यों करेगी, और उसकी आंखों के सामने 4 अलग अलग रंग की फाइल्स निकली, जिसे देखकर माहिरा बेहद हैरान हुई और उसका दिल रुकने लगा। मैंने नहीं रखी। उसने हाथ हिलाते हुए खौफ से आंखें फैलाईं। रेहान मलिक अपने ऑफिस से देख रहा था। माहिर उसे आकर ले गया और रेहान मलिक ने उसे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर साइन करवाए। रेहान मलिक उसे बेहद हर्ट कर चुका था और वो उसके सामने पहली बार तड़प कर रोई थी। उसने सोचा था उसके माँ बाप को इंगेज कर लेगा ताकि वो माहिरा को गलत ना समझे। उसे यकीन था माहिरा उसे मोहब्बत करने लगेगी, लेकिन अब इस वक्त सब खराब हुआ जब निकाह की दूसरी सुबह माहिर और नाइला के माँ बाप बनने की खबर माहिरा तक पहुंच गई। उसका वक्ती गुस्सा अब पुख्ता हो गया था। उसने शर्त रख दी थी माहिर और नाइला शादी करेंगे और इस बच्चे को अच्छी जिंदगी दें तो ही वो रेहान मलिक को उसका जायज हक देगी, वरना वो सारी जिंदगी ऐसे ही शादीशुदा होने के बावजूद भी सिंगल रखेगी। वो ऑफिस में बैठा गुस्सा होता रहा कि माहिर को ये सब करने की जरूरत क्या थी। उसने माहिर को ऑफिस बुलाकर खूब मारा भी था। मुझे क्या मालूम था वो? उसने होंठ पर हाथ रखते कहा। क्या? हाँ क्या? अब गलती की है तो सजा के लिए तैयार भी हो जाओ। रेहान तो आज ही उन दोनों का निकाह पढ़वा देता। तो वो संजीदगी से पूछने लगा। माहिरा मुझे जलील कर रही है तुम्हारी वजह से, इस रिश्ते को अपना लो। उसके लहजे में बस रोने की कसर रह गई थी। मैं किसी से निकाह नहीं कर रहा, उसे मेरे साथ अटैच होने से पहले सोचना था। जो वो कर रही है उसका किरदार खराब कर देगा। माहिर ने कंधे उचकाकर नॉर्मल से अंदाज में कहा। माहिरा इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ेगी, ये याद रखना। उसने संजीदगी से इसे वार्न किया तो वो मुस्कुराने लगा। अच्छा है, मैं भी देखूं वो क्या क्या कर सकती है, लेकिन मैं नाइला से शादी नहीं कर रहा, उसने सख्ती से कहा और उसकी ऑफिस से चला गया। रेहान सर झुकाए बैठ गया। अब क्या करूं? उसने खुद कलामी के अंदाज में कहा। वो शाम में जल्दी ऑफिस से आया था और ये उसकी जिंदगी में पहली बार हुआ था। रेहान मलिक घर जल्दी आ गया था। कोई आया था? उसने मेज पर खाने पीने का सामान देखकर पूछा। नाइला, वो मुस्कुराकर बोली और नाइला का नाम सुनकर उसने गहरी सांस ली। कहाँ तक पहुंची तुम्हारी कार्रवाई? माहिरा ने उसे देखते हुए पूछा। वो नाइला और बच्चे को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, उसने माथा मसला। ओके, उसने पांव सोफे पर रखते कहा। क्या ओके? तुम्हें पता भी है मैं कैसा फील कर रहा हूं? उसने गुस्से से बोला। कैसा महसूस कर रहे हो? वैसे भी मैं चोर हूं, उसने कंधे उचकाकर कहा। वो कोट सोफे पर फेंककर उसकी जानिब आया और वो पूरा माहिरा के ऊपर झुक गया। चोर नहीं हो तुम, वो सब मेरे कहने पर हुआ था, उसने इसकी आंखों में देखते हुए सच्चाई बयान कर दी। मालूम है, उसने भी आंखों में देखते बताया। कैसे? वो उस पर झुके झुके सवाल जवाब कर रहा था। नाइला ने बताया और मुझे मालूम था जब तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की। ये सब तुम्हारी चाल है, मुझे हासिल करना। वो उसकी आंखों में देखती बिना डरे बोल रही थी। उससे शादी के लिए इतनी आसानी से तैयार हो गई थी। उसने साबका रिश्ते के मुतल्लिक पूछा। उसने भी ब्लैकमेल किया था, उसने भी तुम्हारी तरह मेरी बहन का नाम इस्तेमाल किया था कि मुझसे शादी ना की तो तुम्हारी बहन से शादी करके बर्बाद कर दूंगा। वो मेरा दूर का कज़न है,
और मुझे पसंद करता है। उसने यूं कहा जैसे किसी और की कहानी सुना रही हो। मुझे अभी के अभी उसका नाम बताओ, उसने गुस्से से मुट्ठी भींचे हुए कहा। मेरी बहन को प्रोटेक्ट करना अब तुम पर फर्ज हो चुका है रेहान मलिक, और अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो तुम मेरे हाथों जाया हो जाओगे, उसने सख्ती से लफ्ज चबाते हुए कहा। मैं वादा करता हूं तुम्हारी बहन और नायला को कुछ नहीं होने दूंगा। माहिर नायला से शादी करेगा और तुम्हारी बहन को उससे बचाकर अच्छी जगह रिश्ता कराऊंगा। उसकी बात सुनकर माहिरा ने कंधे उचकाए। नाकाम होने पर मालूम है ना क्या सजा है, उसने संजीदगी से पूछा तो इसने अपना झुकाव माहिरा पर और डाल दिया। उसके लब को होले से छूकर पीछे हुआ। मालूम है, इसीलिए यकीनी बनाऊंगा ये मामला जल्द अज जल्द निमट जाए। उसकी बेसब्री देखकर माहिरा को हंसी आई, लेकिन वो हंसी दबाए संजीदा रही। वो जानती थी रेहान मलिक उसे पसंद करता है, लेकिन उसने गलत वक्त पर गलत तरीका अपनाया था, इसलिए अब उसे उसकी सजा मिलना जरूरी थी और बाकियों की जिंदगी बचाना भी जरूरी था। मेरे साथ चलो, वो नायला को उसके प्राइवेट अपार्टमेंट में ले आया। कहाँ? वो रो रो कर हलकान हो गई थी। माहिर के घर, उसने सख्ती से कहा। वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, उसने रोते हुए कहा। देखनी पड़ेगी और कबूल भी करना पड़ेगा। वो संजीदगी से उसका हाथ थामे उठाए जबरदस्ती माहिर के घर ले आया था। वो अकेला था और अपनी मनमानी करता था, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारता था। इस बार रेहान ने सोच लिया था वो उसे जिम्मेदारी का और उसकी गलती का एहसास दिलाकर रहेगा। वो कभी मुझे कबूल नहीं करेगा, नायला ने रोते हुए नफी में सर हिलाया। मेरी बात माननी पड़ेगी नायला, मेरे लिए रोज बरोज मुश्किल बढ़ती जा रही है। जानती भी हो माहिरा आज यहाँ आने वाली है और तुम्हारे साथ रहने वाली है। मेरी बात तुम्हारे मामले में बिल्कुल नहीं सुन रही। वो बाल नोचते हुए बोला कि नायला रोते रोते हंसती। माहिरा लकी है आपने उसे पाक रास्ते से अपनाया है, उसने गले में उभरती गिल्टी को दबाते हुए कहा। उसने अपने आप को किसी के आगे झुकने नहीं दिया नायला, और तुम्हें मालूम होगा माहिर ने उसका किस कदर पीछा किया था और उसे हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हाथ नहीं आई। लड़कियों को उस चांद की तरह होना चाहिए जिसे कोई छू ना सके, ना हासिल कर सके। बस जो हासिल करे वो उसको हासिल करने की सलाहियत रखता हो। लड़कों की बातों में आकर अपना सब कुछ कुर्बान कर देना, उन्हें फोन नंबर दे देना, ये सब बेवकूफ़ी के सिवा मेरे नज़दीक और कुछ नहीं है। वेट करो, जो तुम्हारा है तुम तक बहाने से आएगा, वो उसे समझाते हुए बोला। नायला ने यही अल्फाज माहिरा से भी सुने थे। दोनों की सोचें कितनी मिलती थीं। उसने इस बात में सर हिलाया और रेहान के साथ बाहर निकल आई। वो दोनों माहिर के घर आए थे और वो स्विमिंग पूल में नहाते हुए जूस के मजे ले रहा था। नायला तुम्हारे साथ रहेगी, उसने पास आते हुए कहा। किस खुशी में? उसने गुस्से से नायला को घूरा। इसी खुशी में जिस खुशी में तुमने इसका सब कुछ छीन लिया, रेहान ने संजीदगी से कहा। मैं ऐसी लड़की को अपने साथ हमेशा के लिए नहीं रख सकता जो किसी भी लड़के को अपना सब कुछ दे दे, वो संजीदगी से बोला तो नायला रोने लगी। तुम्हें कहा था ना लड़कियां कांच की तरह होती हैं, एहतियात करना। तुमने मेरी बात नहीं मानी। रेहान का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा। नायला के साथ बदतमीजी मत करना, उसने जाते जाते तंबीह की। मैं इसे किसी हाल में कबूल नहीं करूंगा, उसने हाँक लगाई। वो चला गया और वो चोर बनी खड़ी थी। यहीं खड़ी रहो, वो टावल लपेटकर पूल से बाहर आते बोला। नायला ने कोशिश की कि वो उससे बात कर ले, लेकिन माहिर ने बात तो क्या देखना तक गवारा ना किया। उसके लिए लड़कियां खिलौने के सिवा और कुछ नहीं थी। हाँ, अलबत्ता माहिरा हासिल हो जाती तो शायद वो कुछ सोचता भी, लेकिन वो रेहान का नसीब ठहरी थी। माहिर सो रहा था जब नायला को याद आया कि उसके माँ बाप उसे इस हालत में कबूल नहीं करेंगे और बदनामी अलग। उसने सोए माहिर को देखा और मुस्कुराई। गलती की तलाफी हो सकती है, लेकिन गुनाह का क्या? उसकी तलाफी कैसे हो? जुर्म की सजा होनी चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए सबकी जान आजाद करने का सोचा और किचन से छुरी लाई और अपने उल्टे हाथ की कलाई पर फेर दी। सफेद कारपेट लाल होने लगा था। माहिर, उसने माहिर को जगाना चाहा।
ماہر میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ اس کے چہرے پر جھکی کہہ رہی تھی۔ ماہر نے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھا۔ میں تم سے واقعی محبت کرتی ہوں، تمہارے ایک بار کہنے پر سب کچھ داؤ پر لگا لیا کہ شاید میں تمہارے دل تک رہائی حاصل کر سکوں، لیکن میں نہیں جانتی تھی تم مجھے استعمال کر رہے ہو۔ مجھے افسوس ہے میں نے تمہیں اجازت دی خود کو استعمال کرنے کی، مجھے بہت افسوس ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے میرے بچے کو لوگ گالی دیں گے، مجھے ڈر لگتا ہے اب اس دنیا میں میرے کردار کا کچھ باقی نہیں رہا، میں یہاں رہ کر کیا کروں گی؟ ماہر، وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھی کہ ماہر اٹھ بیٹھا، اور جب اس کی کلائی کی جانب نگاہ گئی تو وہ ساکت ہو گیا۔ نائلہ، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ اس کی کلائی پر کپڑا باندھ رہا تھا۔ محبت کی سزا، گناہ کی سزا، میں نے سب خود کو دے دی، تم آزاد ہو، بالکل آزاد۔ وہ ہنستے ہوئے اس کی باہوں میں جھول گئی اور وہ اسے ہسپتال لے کر بھاگا۔ ماہر نے ریحان کو کال کر دی تھی، وہ اور ماہرہ بھی ہسپتال بھاگے چلے آئے۔ کیسی کنڈیشن ہے؟ ماہرہ نے پوچھا۔ کریٹیکل۔ ماہر کا سر جھکا ہوا تھا۔ اچانک ماہرہ کو گھر سے کال آنے لگی، وہ سننے کے لیے سائٹ پر گئی۔ آپی، واجد بھائی کو پولیس نے پکڑ لیا، وہ غیر قانونی کام میں ملوث تھے۔ ماما بابا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ریحان بھائی نے آپ سے شادی کر لی، وہ اسے بتا رہی تھی، اور وہ ریحان کو دیکھ رہی تھی جو پریشانی سے ڈاکٹرز کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میں گھر چکر لگاؤں گی، اس نے گہری سانس لیتے کہا۔ ڈاکٹر پلیز نائلہ کو بچا لیں، ماہر نے بے بسی سے بال نوچتے ہوئے کوئی 10ویں بار کہا تھا۔ سوری، خون بہت بہہ گیا ہے، ڈاکٹر نے واضح الفاظ میں بتاتے اس کی روح کھینچ لی۔ پلیز کسی بھی طرح بچا لیں، وہ روتے ہوئے بولا تو ریحان نے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ بینچ پر بیٹھ کر رو رہا تھا۔ ماہرہ نے نفی میں سر ہلایا، اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سوری، شی از نو مور، ڈاکٹر نے آپریشن تھیٹر سے باہر نکلتے بتایا اور چلے گئے۔ ماہر کا دل کیا چیخ چیخ کر رونے لگے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ماہر چلا رہا تھا، رو رہا تھا، وہ اسے بھیک مانگتی رہی، اس نے نہیں سنا، اور اب وہ رو رہا تھا۔ ماہرہ نے آنسو صاف کیے، نائلہ کے گھر کال کر کے بتانے لگی۔ اس کی رسومات پوری کی گئی تھی۔ ماہر بے حس ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے کسی نے اپنی جان لے لی تھی۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، اسی لیے ماہر مطمئن تھا نائلہ بھی موو آن کر جائے گی، لیکن اس کا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ اس کو اب کوئی مستقبل نہیں تھا، ماں باپ اور دنیا میں اب کوئی اسے نہیں رکھے گا۔ اس کے پاس اب ایک ہی حل بچا تھا۔ ماہر نے بس ایک جگہ کا رخ کر لیا تھا، وہ اب بس قبرستان میں پایا جاتا، قبر سے لپٹ کر معافی مانگتا، لیکن اب اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ریحان اسے لے کر وہاں سے واپس آتا، وہ بھی اس کے دکھ میں پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ نائلہ کا جانا ماہر پر قہر بن کر ٹوٹے گا۔ وہ نہ اب آفس جاتا اور نہ ہی گھر سے باہر نکلتا، وہ بس گھر میں پڑا رہتا تھا۔ ریحان ماہر کو گھر چھوڑ کر آیا اور صوفے پر لیٹ گیا، وہ لیٹے لیٹے سو گیا تھا۔ ماہرہ باہر آئی تو دیکھا وہ صوفے پر بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا۔ ریحان، وہ پریشانی سے چلتی اس کے قریب آئی، اس نے بکھرے بال پیچھے کیے۔ ریحان، اپنی جگہ پر سو جاؤ، اس نے نرمی سے اس کے چہرے پر انگلی پھیر کر کہا۔ ماہرہ، میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا، وہ رو رہا تھا، یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ ماہرہ، نہ میں نائلہ کو وہاں چھوڑ کر آتا، نہ وہ اپنی جان لیتی۔ وہ اس کے گلے لگ کر رونا چاہتا تھا، ماہرہ نے اسے خود سے گلے لگا لیا۔ ریحان، یہ ویسے بھی ہوتا، ماہر اسے قبول نہیں کر رہا تھا، اور ماں باپ بھی ذلیل کرتے، اگر تم نے بھی کوشش کی تب بھی یہ ہونا تھا۔ اس نے ریحان کی پیٹھ سلاتے نرمی سے دلاسا دیا۔ وہ بہت امید سے میرے ساتھ گئی تھی، وہ ابھی تک غمگین تھا، سب کو امیدیں ہوتی ہیں ریحان، سب لوگ امیدوں پر پورا نہیں اترتے۔ وہ اس کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ لاؤنج میں نیم اندھیرا تھا۔ مجھے بہت گلٹ محسوس ہو رہا ہے مائرہ، اسے سانس لینے میں مسئلہ رہنے لگا تھا، وہ اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ وقت کے ساتھ تمہیں سمجھ آ جائے گا، اگر تم نائلہ کو وہاں نہ بھی لے کر جاتے تب بھی وہ سب ہوتا۔ وہ احساس ندامت میں ڈوبی ہوئی تھی، اس نے غلط راستے سے خود کو نجات دی ہے۔
दोबारा गलती की है, लेकिन हम उसके लिए बस दुआ कर सकते हैं। वो उसके कंधों को थामे मुसलसल समझा रही थी। मैंने वादा पूरा नहीं किया। वो फिर रोने लगा। माहिरा ने घूर कर उसे देखा और उसके कपकपाते लबों पर अपने लब रख दिए। रेहान मलिक साकित रह गया। उसने आंखें फाड़े माहिरा को देखा। वो आंखें बंद किए उसके बेहद करीब थी। रेहान को सारे गम भूल गए। याद रहा तो बस इतना कि माहिरा उसके बेहद करीब है। माहिरा ने कोशिश करके रेहान को संभाल लिया था। कुछ दिन बाद माहिरा और रेहान नायला की कब्र पर आए थे। वहां माहिर बैठा रो रहा था। माहिरा ने फातिहा पढ़कर फूल रख दिए और पलटकर गाड़ी में जा बैठी। उसे माहिर को देखकर नायला याद आने लगती थी। रेहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो रोने लगा। अब उसकी जिंदगी में गिल्ट, नदामत और शर्मिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।